اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں کوثر نیوز کی جانب سے آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں، بروز ہفتہ 30 تاریخ کی پوری رات کا وقت آپ مسجد باغبان تشریف لائیں، اس سے دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی۔ الحمدللہ شہر میسور میں اس مرتبہ ایک اعلیٰ پیمانے پر مظاہرہ خیرات ہونے جا رہا ہے۔ الحمدللہ مبارک رمضان کا مہینہ اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان کی تاخیرات، ایسے موقع پر الحمدللہ ملک کے جو مشہور قراء ہیں انشاءاللہ جن کا تعارف کرائیں گے مولانا فیاض صاحب، وہ مشہور قراء تشریف لائیں گے۔ اور میں اس وقت آپ حضرات سے خصوصاً گزارش کرتا ہوں، بروز ہفتہ 10:30 بجے مسجد باغبان میں وقت مقررہ پر بلا تاخیر آپ حضرات سے میں بہت ادب سے گزارش کروں گا، چونکہ رمضان اکثر مسجدوں میں 26-27ویں تراویح میں قرآن تو ختم ہو جائے گا، آخر کی تراویحوں میں مختصر سے چھوٹی چھوٹی صورتیں نماز میں ہوتی ہیں، تقریباً 9-9:30 بجے سے پہلے لوگ نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اول وقت میں اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کر برابر ٹھیک 10:30 بجے آپ حضرات مسجد باغبان میں تشریف لائیں۔ السلام علیکم، میں صفدر خیسر۔ ہم پہ ایک بہت ہی خوشخبری کی نیوز سنانے جا رہا ہوں۔ وہ خوشخبری کی خبر یہ ہے کہ مظاہرہ خیرات کا عظیم الشان اجلاس مسجد باغبان میں جہاں پہ ابھی کھڑا ہوا ہوں، مسجد باغبان میں ایک یادگار اور بہت ہی نورانی محفل سجنے والی ہے۔ اس عظیم الشان خیرات پروگرام میں بہت ہی قراء کرام اپنے اپنے طور پر محفل میں حصہ لیں گے۔ ایک طرح سے ایک روحانی منظر ہوگا، چونکہ میسور کے مسلمانوں کی ایک بہت خوشخبری ہے کہ وہ اپنے دلوں کو منور کرنے کے لیے مسجد باغبان پہنچ سکتے ہیں، جہاں پہ انہیں مختلف قراء کرام کی جانب سے پیش ہونے والی خیرات کو آپ سماعت کر سکیں گے۔ اور اس نورانی محفل میں اس مسجد باغبان کے منتظمین کی جانب سے جو بھی تیاریاں ہونے والی ہیں، جو ہو رہی ہیں، بروز ہفتے کو ہونے والے پروگرام کے تعلق سے علماء کرام کی تاثرات آپ کے روبرو پیش کروں گا۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاخیراتوں میں قرآن سننے کا الحمدللہ بہترین موقع مل رہا ہے، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ الحمدللہ تاخیرات پہلے نزول قرآن کی رات ہے، اور ایسے موقع پر قراء کی زبانی ہم قرآن سن رہے ہیں، قرآن سننے کا موقع مل رہا ہے، یہ ہمارے لیے بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے۔ الحمدللہ ہم جو پہلے جو مظاہرے خیرات یہاں منعقد ہوئے شہر میسور میں، مصر وغیرہ کے قراء کرام تشریف لائے تھے، دارالعلوم صدیقہ میں پروگرام ہوا تھا، ماشاءاللہ 1 سے 2 بار بڑا اعلیٰ پیمانے پر۔ الحمدللہ ہمارے ملک میں بھی الحمدللہ بڑے بڑے قراء کرام موجود ہیں، ان کی بھی قدر کرنا ضروری ہے۔ باہر کے قراء الحمدللہ اللہ نے ان کو فن عطا کیا ہے، صلاحیت عطا فرمائی ہے، لیکن ہمارے ملک میں بھی فنی قراء موجود ہیں، وہ فنی قراء یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں سارے لوگوں سے کہ یہ جو آخری تاخیرات ہے بروز ہفتہ سارے کے سارے مسجد باغبان کی مجلس منتظمہ اور حضرت مولانا سید ابراہیم صاحب ان کی کاوشوں سے، ان کی محنتوں سے قراء کرام یہاں تشریف لا رہے ہیں، اور قراء کرام کو مدعو کرنے میں ہمارے مولانا سید ابراہیم صاحب اور مولانا عبدالمجید ضیائی صاحب ماشاءاللہ ان کا بہت بڑا ان کا رول ہے، ان کی محنتوں سے قراء یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ بہترین موقع ہے ہمارے لیے قراء کی زبانی قرآن سننے کا، سارے کے سارے اس محفل قرآن سے جو ہے استفادہ کریں اور اپنے اندر قرآن مجید سے انس محبت اور قرآن مجید سے لگاؤ کا جو ہے ثبوت دیں۔ قرآن مجید سنیں گے الحمدللہ، فضیلتیں بے شمار ہیں، اس کی واقعات بھی بے شمار ہیں۔ ادھر قرآن مجید کو سنتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جو ہے بدل دیتے تھے، اور ایمان لے کر آئے کفار مشرکین قرآن کو سن کر بے شمار واقعات ہیں۔ اور ہم بھی قرآن سنیں گے انشاءاللہ، ہمارے ایمان میں حلاوت پیدا ہوگی، ایمان میں اضافہ ہوگا، اور قرآن مجید سے تعلق اور بڑھے گا۔ میں سارے حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ہونے والے مظاہرے خیرات کو پوری طریقے سے کامیاب کرے، اور اپنا قرآن مجید سے تعلق، قرآن مجید سے جو ہماری محبت ہے اس کا ثبوت پیش کرنے کی کوشش کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ آنے والے قراء اکرام کا تعارف اصل ہے،
ऐसे ज़बरदस्त क़ुर्रा इकराम हमारे शहर में तशरीफ़ ला रहे हैं। अब तक जो है शहर मैसूर वालों को उनसे सुनने का इत्तेफाक नहीं हुआ है। अगर कोई क़िरात से ताल्लुक़ रखने वाले शौकीन हैं, यूट्यूब में जाकर अगर देखें तो माशाअल्लाह इन क़ुर्रा इकराम ने जो मुज़ाहरा फ़रमाया है वो बड़ा दिलचस्प मुज़ाहरा है और बड़े फ़नी क़ुर्रा हैं। हम लोग जैसा कि हज़रत ने फ़रमाया कि हज्जाज रमज़ान और हज़रत क़ारी बासित साहब ऐसे बड़े बड़े क़ुर्रा को हम सुनते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी ज़माने में उसकी एक झलक हमारे इस मुल्क में भी ऐसे क़ुर्रा इकराम मौजूद हैं जो उनकी एक झलक देखने को हमें मिल रही है। और मैं ऐसे मौके पर शहरियान मैसूर से खुसूसन अपील करता हूँ, जब ये क़ुर्रा इतना लंबा सफ़र कर कर शहर मैसूर आ रहे हैं और कुरान की निस्बत पर आ रहे हैं और अपना फ़न जो है आपके सामने पेश करने के लिए आ रहे हैं, तो मैं बहुत ही अदब के साथ आप हज़रात से गुजारिश करता हूँ, जिसमें हमारे इससे एक ज़बरदस्त क़ारी जो कई मरतबा शहर मैसूर में इनका आना हुआ है, कई मुज़ाहिरों में इन्होंने शिरकत फरमाई है, आंध्रा से इनका ताल्लुक़ है, हज़रत क़ारी सुहेल अहमद साहब कासिमी दामत बरकातुहुम। माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने इनको पढ़ने का एक अजीब सलीक़ा, एक मलका अल्लाह ने इनको अता फ़रमाया है। अगर उनकी क़िरत को अंदाज़ा लगाएं तो हज्जाज रमज़ान जो हमारे बहुत बड़े क़ारी जो शहर मैसूर आए थे, उनकी नकल अगर देखना चाहते हैं तो क़ारी सुहेल साहब की अगर क़िरत सुनेंगे तो अंदाज़ा लग जाएगा गोया कि हम हज्जाज रमज़ान को सुन रहे हैं। ज़बरदस्त क़ारी सुहेल साहब अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। इसी के साथ यूपी से मीरठ यूपी के इलाक़े से एक क़ारी जो जिनको अभी तक हमने मैसूर में उनको बुलाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मौलाना अब्दुल मजीद साहब की कोशिशों से उनकी तारीख़ हमें मिली है। हज़रत क़ारी मेहताब साहब कासमी दामत बरकातुहुम, माशाअल्लाह ये भी फ़न्नी क़ारी हैं, ज़बरदस्त इनका भी पढ़ने का अंदाज़ है। जब आप हज़रात शिरकत फरमाएंगे तो आपको पता चलेगा। और ये जितने भी क़ुर्रा आ रहे हैं ये जवां क़ारी हैं माशाअल्लाह, एक एक भी माशाअल्लाह नौजवान क़ुर्रा इकराम हैं। इसी तरीक़े से हज़रत क़ारी मोहम्मद सादिक़ साहब कासिमी जो उत्तर प्रदेश से इनका ताल्लुक़ है, माशाअल्लाह ये भी तो बहुत कम उम्र हैं ये, लेकिन पढ़ने का जो अंदाज़ है और सांस का जो मलका अल्लाह ने इनको अता फ़रमाया है, मैं समझता हूँ ज़बरदस्त जो है सांस अल्लाह ने इनको दी है। मैं एक क्लिप में इनकी क़िरत भी सुना, तकरीबन 1 मिनट 10 सेकेंड पर जो है पूरा मुकम्मल एक ही अंदाज से इन्होंने क़िरत पेश फरमाई। पूरा मजमा जो है बेचैन बेताब होकर के उठकर दाद देने पर मजबूर हो गया। ऐसे ज़बरदस्त क़ारी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। इसी तरह हज़रत क़ारी समीउल्लाह साहब क़ादरी, ये भी माशाअल्लाह आज बागलकोट से इनका ताल्लुक़ है। और क़ारी अब्दुल बासित साहब जैसे क़ारी की नकल इनके पढ़ने में अल्लाह ताला ने वो अंदाज़ अल्लाह ने इनको दिया है। अगर आप यहाँ वक्त मुक़र्ररा पर शिरकत कर लेंगे तो ऐसे ज़बरदस्त क़ुर्रा से आपको भी इस्तिफ़ादा होने का मौका मिलेगा। इसी तरह हमारे इस इलाक़े के कनकपुर से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद मुदस्सिर साहब काशिफ़ी, क़ारी मुदस्सिर अहमद साहब मिशकाती, माशाअल्लाह ये भी ज़बरदस्त पढ़ने का मलका और फ़न रखते हैं। इंशाअल्लाह ये मायनास क़ुर्रा इकराम अल्हम्दुलिल्लाह बरोज़ हफ़्ता इंशाअल्लाह वो तशरीफ़ लाएंगे और मस्जिद बाग़बान में इनका ज़बरदस्त मुज़ाहरा भी होगा। और इसी के साथ साथ हमारे दरमियान में 2 नात ख़ान भी तशरीफ़ ला रहे हैं। एक तो हमारे इस शहर मैसूर के जिनको बुलबुल कर्नाटक या बुलबुल मैसूर जिनको लक़ब मिला है, अल्लाह ने उनको भी बहुत अच्छा पढ़ने का जो है एक फ़न अल्लाह ने दिया है नात पढ़ने का। इसी तरह झारखंड से ताल्लुक़ रखने वाले क़ारी फ़िरदौस कौसर साहब यूट्यूब में ये छाए हुए हैं। अगर आप जाकर देखें इन बहुत सारी नातें इनको आपको देखने को और सुनने को मिलेंगी। ऐसे ज़बरदस्त नारखान भी इंशाअल्लाह हमारे दरमियान में तशरीफ़ लाने वाले हैं। और ये बेहतरीन जो है माशाअल्लाह मुज़ाहरा मुनाक़िद हुआ है। आप हज़रात शिरकत कर कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस मुज़ाहरे में कैसे कैसे फ़न्नी क़ुर्रा इकराम को सुनने का मौका मिला है। अल्लाह ताला इस जलसे को कामयाब फरमाए और ख़ुसूसन तमाम हालात से होने वाले मुज़ाहरे की अल्लाह पूरी हिफाजत फरमाए और इस जलसे को अल्लाह ताला कामयाब फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। कि तकरीबन 2-3 माह पहले हमारी इस मस्जिद के ज़िम्मेदारों में अहम
जनाब इस्लाहुद्दीन साहब और जनाब अलहाज प्यारू साहब और जनाब अमजद साहब, ये माशाल्लाह शुरू ही से इनके अंदर मस्जिद की खिदमत का और दीनी खिदमत का एक शौक़ अल्लाह ने इनको दिया है। तो तकरीबन 2-3 माह पहले से इसकी कोशिश की जा रही है कि एक प्रोग्राम हमारी मस्जिद में ऐसा हो जो कुरान पर और ताक़रातों पर मबनी हो और उससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी नेक नियति पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मौका लाया कि बेहतरीन क़ुर्राए कराम पूरे हिंदुस्तान से हमारी इस मस्जिद बाग़बान में मदऊ होने वाले हैं। अल्लाह ताला उनके आने को कबूल फरमाए। दरअसल हमारे इस मुज़ाहिरे क़िरत का मकसद ये है कि बिलख़ुसूस हमारे इस मोहल्ले में उमूमी एतबार से शहर मैसूर में कि कुरान का एक शौक़ पैदा हो, इससे उनके वालिदैन पहुँचेंगे या सुनेंगे और जब वो कारियों को सुनेंगे तो कुरान तो माशाअल्लाह दिलों पर असर करता ही है, तो उनकी दिलों में ख़्याल आएगा कि हमारे बच्चों को भी हमें ऐसे कारी बनाना, ऐसे हाफिज़ बनाना। तो जहाँ ये 2 साल के लॉकडाउन के बाद से बहुत सारे हमारे बच्चे मदारिस से ज़रा दूर होते जा रहे हैं, तो इस वजह से हमारा एक मकसद ये है कि इससे कुरान का शौक़ हमारी कौम में बढ़े और वो कुरान से नज़दीक हो। और दूसरा मकसद हमारा ये है कि आम तौर से शब क़दर के बाद बिल्कुल मस्जिदें वैरान पड़ जाती हैं और बाज़ारें गर्म रहती हैं, गोया कि ऐसा हो जाता है कि जैसे 26वीं हुई हमारी ज़बान में तो गोया रमज़ान ही ख़त्म हो गया, नहीं बल्कि रमज़ान जो है आखिरी फ़जर तक, यानी लैलतुल जायज़ा जिसे कहा जाता है कि चांद रात की आखिरी फ़जर तक भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही इनाम देने वाले हैं। तो ये 26वीं के बाद भी ये रमज़ान ही है, ये बरक़ात के अय्याम ही है, ये अल्लाह से मांगने की रात ही है। तो इस पूरी रात में आखिरी में हो ना हो हम जो है इस कुरान की महफ़िल सजाकर लोगों को जोड़कर उनके दिलों में कुरान का एक शौक़ और ज़ौक़ दिलाने के लिए हमने ये मेहनतें की है। इसलिए आप वक्त का ख़ास ख्याल रखें। कारी भी बहुत हैं और नात ख़ान भी हैं और माशाअल्लाह पूरे बहुत सारे उलमा की मदऊ होने वाले हैं, तो इस वजह से सबको इससे फ़ायदा हो। तो माशाअल्लाह पूरे इंतज़ामात हमारी हद्दुल मक़दूर किए हुए हैं। अल्लाह जज़ा खैर दे जो भी इसके पीछे ताउन और ख़िदमतें कर रहे हैं। और सब कुछ सहरी का भी नज़म किया गया है कि जहाँ प्रोग्राम 10:30 बजे शुरू होगा, इंशाअल्लाह जो ख़त्म होगा 2:30 बजे 3 बजे, उसके बाद दुआ होगी और सब कुछ सहरी का भी नज़म किया गया है। आप तमाम हज़रात से अपनी अभी से सारी अपनी मसरूफ़ियात को जोड़ते हुए, अपनी मशगूलियत को यकजा करते हुए बरोज़ हफ्ता मेहमान ख़ुसूसी हमारे सदारत हमारे शहर के शहर क़ाज़ी जो मुफ्ती सैयद ताजुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम आलिया, ये माशाअल्लाह हमारे इस मुज़ाहिरे क़िरत के सदर होंगे। और इसमें आली जनाब इस्लाहुद्दीन साहब गदियाल जो हमारे इस मस्जिद के एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं वो होंगे। फिर हमारे मजलिसुल उलमा के सदर मोहतरम अलहाज मौलाना हज़रत ज़काउल्लाह साहब दामत बरकातुहुम, और जो ये क़ुराए कराम को मदऊ करने में जो हमारा ताउन फरमाए हज़रत मौलाना अब्दुल मजीद साहब ज़ियाई, ये मेहमान ख़ुसूसी।